or like what kind of counseling you do or soul coaching you do? Like first of all, welcome to Spiritual Spirals. Yeah, this session. Welcome, Rashmi Didi. Yeah. Highly obliged. Thank you, Anna. Thank you. No, I'm obliged. Yeah. No. Honor is mine, pleasure is mine. I only look older, but it's okay. Yeah, we have our own experiences. It's fine. I'm married. I have 2 kids. And for the last 6 years, I'm into counseling and coaching. I give the clarity in different aspects of the life. And I'm still in process of learning. Okay. Prior to that, for 15 years, I was into accounting field. Oh, wonderful, wonderful. Wonderful. So welcome. And we have this Sunday session. We discuss some issues which may be, on top of the mind of the participants. Or then we also have a theme. Sometimes the theme comes up. And so today I thought music maybe. Okay. Yeah, but perhaps music later. But, like what is like this counseling kind of thing that you do? Did you learn somewhere? You can ask me questions also. You can ask me also questions. In fact, I have very few questions about like life. I have very clarity about life. Rashmi ji can tell me I'm very clear about the aspects of the life. So not too many questions pop up in my mind. No, I don't want to know about your life or my life. Like I'm asking that, like the soul coaching that you do, have you learned it or what kind of soul coaching? Like someone, if I'll put this recording and if somebody wants to know that what kind of, soul coaching Poonam does, maybe you get some connection. That's why I'm asking. Let me give you the clarity between coaching and counseling and coaching. Okay. Counseling is 101. One-on-one, and it's like you got hurt here, you got wound here, and you go to doctor and doctor give you the medicine to heal this wound. This is the counseling. And coaching is like where we work on the immune system, that you never get hurt, you never get any disease. So coaching is a long process, and counseling is one-on-one, one sitting, 2 sitting. Okay, that's how you define counseling and differentiate. You got the idea? Counseling and coaching, I think you get the idea already. Okay, and you are a soul coach. Life coach. A life coach. And have you heard about Dr. Newton? Yes. Okay, have you done that soul coaching from him or somebody else? Okay, somebody else. Okay. My mentor was Arfin Khan. Arti Khan. My mentor, Arfin Khan. He's the student of Tony Williams. Tony Williams. Okay. And my second, I have lots of mentor. Okay, sure. And Vivek Mantri, he's the NLP practitioner. Okay. And he's the student of Ram Verma. He's the best NLP practitioner, NLP trainer in India. Wonderful. So welcome. अब हमारे पास NLP ट्रेनर एंड लाइफ कोच आ गए हैं। और रश्मि दीदी, आप इनको कैसे जानते हो? I'm still learning. मैं इसको बचपन से जानती हूँ। अच्छा। फ्रॉक पहनती थी तब से जानती हूँ। अच्छा, तो मुझे अब क्लैरिटी आ गई है कि आप कैसे जानते हो। मुझे भी आप तब से जानते हो जब मैं फ्रॉक पहनती थी, क्यों दीदी? I want to share my experience. I want to share one of my experience. Yeah, sure. In our coaching commitment, हम लोगों को ना एक टास्क दिया जाता है, अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो उस टास्क में से एक था कि you go and meet influential people. अभी आप म्यूट हो गए। Can you hear me? Yes. When I was like 3rd standard or 4th standard, so she was like an inspiration for me.
So I was like, little we are from same community. I used to avoid my community people. Then I said कि नहीं यार ये challenge मिला है मुझे, I must go to Rashmi aunty. Then I visited her. Remember? तो वहीं से हमारी last year मुलाकात हुई है. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। मैं ना अभी इस वक्त है ना लैंडमार्क फोरम कर रही हूँ, लैंडमार्क फोरम। वहां भी हमें मतलब 7 महीने का एक लीडरशिप प्रोग्राम है लैंडमार्क फोरम, अगर आपने सुना है या नहीं सुना। वहां भी हमें इस तरह के वो दिए जाते हैं टास्क, जैसे कि मेरी Task मिल जाते हैं. टास्क एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी मेरी मतलब जो को स्टूडेंट है उसको ये दिया गया कि आप फ्री में एक पेस्ट्री लेकर आएंगे एक शॉप से, मॉन्जनीस। तो फिर वो गई, फिर उसने बोला कि हमें ये टास्क मिला है, मुझे ये टास्क मिला है। उसको सचमुच में फ्री की वो मिल भी गई पेस्ट्री। Challenge. हाँ, तो ये सब करने में मतलब एक तो पहले डर लगता है, फिर हाँ. अगर हो जाए तो फिर से सरप्राइज भी लगता है, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है दुनिया में। तो फिर तुम्हें जब रश्मि जी से मिली होंगी तो तब उसके बाद तुम्हारा लाइफ एकदम मतलब यू ओवरकेम योर फियर फॉर और योर रेजिस्टेंस टू मीट न्यू पीपल। हाँ तो हाँ रेजिस्टेंट तो आई ओवरकम दैट. लेकिन मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला उनके थ्रू. हाँ, उनके थ्रू। अच्छा। तो आई थिंक कि लाइफ में मैं जो आगे फ्यूचर में कुछ गलती करने वाली थी तो मैंने अभी से संभाल ली. ओह अच्छा अच्छा, ये कुछ सीक्रेट चल रहा है जो, कोई बात नहीं है। नहीं, यू लर्न फ्रॉम एवरीबडी यू मीट इन योर लाइफ ना. हर ऑफ किसी कोर्स, से हम सीखते हैं. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मैं भी अपना थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ कि मुझे भी करीब 15 साल हो गए हैं ये सब पढ़ते हुए, और मेरा धीरे धीरे ही मतलब इसमें इंटरेस्ट आया। और मैं पहले मतलब ऐसे चैंटिंग और जप वगैरह या गीता पाठ वगैरह के क्लासेस में जाती थी जब मैं वेरी गुड. कॉलेज वगैरह में थी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये न्यू एज की बुक्स और लुइस है एंड angel therapy and dream interpretation and कुछ एनर्जी हीलिंग और तो अभी इस तरह का कोई मैं मोडालिटी ना अपने आप को कुछ बोलती हूँ, बट मैं बोलती हूँ यस आई एम अ मेंटोर एंड यस इंट्यूटिव meditation teacher. That's how I introduce myself. तो मेडिटेशन भी मैंने बहुत सारे प्रकार की सीखी हैं, और विपासना में भी 5-6 बार गई हूँ मैं। हर साल मेरा विपासना का एक करती थी। और अब तो सिर्फ ब्रेथ मतलब आनापानसती जो मेडिटेशन वो करती हूँ। और आज मतलब पिछले 1.5-2 साल से मैं सिर्फ एक टीचर मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रही हूँ, वो है सुभाष पत्री जी, या पिरामिड सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअल मूवमेंट, PSSM बोलते हैं, हैदराबाद बेस्ड है। और तो दागा वो फाउंडेशन. हाँ दागा फाउंडेशन. हाँ दाग हाँ, पर दागा फाउंडेशन. उनके गुरु बोल सकते हाँ हैं, उनके नॉट जो हिम। गुरु है पत्री जी. हाँ, उनके पत्री जो जी, हाँ। उनके तो जो उनके लिए ही मैं उसी मूवमेंट के लिए मैं कुछ वॉलंटरी काम भी करती हूँ। जो मैगजीन आती है उसका कुछ टेक्निकल और कुछ ट्रांसलेशन वगैरह भी मैं करती हूँ, बट फॉलो मैं उन्हीं का प्रोग्राम कर रही हूँ। मतलब प्रोग्राम बोलेंगे या उनका प्रिंसिपल्स बोलेंगे या जो भी। हाँ, तो ये तो दैट इज माई थिंग एंड फॉर पत्री जी एंड टुडे म्यूजिक का इसके लिए, क्योंकि हमारे जो पत्री जी हैं वो बोलते हैं कि म्यूजिक इज ऑल्सो पाथवे, कि मेडिटेशन अगर आप म्यूजिक के साथ करें तो आपका ध्यान काफी डीप में जाता है। तो कई लोग जो फोकस नहीं कर पाते हैं तो वो मेडिटेशन भी मतलब वो तो रिकमेंड ही करते हैं कि नए लोग जो हैं म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करें। कि आप अगर कोई बोलेंगे ना कि मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, या मैं बहुत मतलब